The Model Millionaire is a story about a young man and how he falls in love with a very rich young lady and how their love affair goes to a point and how it ends in a climax. So, Oscar Wilde was one of the wisest men of his time, and his writing is full of wit, humor, sarcasm, and he mocks the society. So this Model Millionaire itself is a sarcasm. We will know this in details. So I'll teach this chapter line by line. So I request you that if you have the book, you take it out because I'll not give lectures. I'll read and explain the line. So if you have the book, please do open it and follow line by line. So pause the video, get your book, and then follow line by line. Otherwise, it will be entertainment and not a much use. So let us begin. So I will go very slow. So if you have any copy, write the notes. Unless one is wealthy, there is no use in being charming fellow. So the very first line is one of the most beautiful lines of Oscar Wilde. He's saying, if you are not rich and if you are beautiful, I mean, if you are poor and if you are beautiful, so ये मुफलिसी में आटा गीला होगा. मतलब, if you are rich, if you are charming, well and good. But if you are poor and then you are charming, तो गर्लफ्रेंड होगी, खर्चा बढ़ेगा, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी. So the first line means गरीब को चार्मिंग होना भाता नहीं. Of course, चार्मिंग होना और ब्यूटीफुल होना तो कुदरत के हाथ में. So this first line is satire कि गरीब आदमी खूबसूरत ना हो तो बेहतर, क्योंकि गरीब खूबसूरत हुआ तो प्यार मोहब्बत होगा. Somebody will propose, somebody will accept, somebody will fall in love, somebody has to date. At the end of the day, खर्चा होगा, ताका जाएगा. So beautiful is a quality that only poor rich people can have. Romance is a privilege of rich, not a profession of unemployed. So he's saying pyar, mohabbat, romance, date, candlelight dinner, okay, ये सब अमीरों के privileges. मतलब अगर अमीर है तो आपको ये by default कुदरत की तरफ से मिला है कि you have the money, so you can go and have a romance, have a date, can meet a girl, can meet a boy, but not a profession of unemployed. So author is saying कि अगर कोई unemployed, इसके पास जॉब नहीं है, वो प्यार मोहब्बत ना ही करे तो भाई साहब बेहतर. क्यों? क्योंकि गरीब अगर प्यार करेगा, एक तो unemployed है, so he has no money to sustain himself, and if he falls in love, he has to sustain the other half, I mean the beloved. So here is a satire. Now why I'm calling it satire? Because now understand, you being charming is not in your quality. The romance happens spontaneously. So rich and poor is no matter, doesn't matter. But the author is saying just to make fun of it. He is speaking in tongue in cheek. मतलब ये मजाकिया अंदाज है. तो मोहब्बत लोग करें अमीर और गरीब क्या, मोहब्बत तो क्या अमीरी और गरीबी से पर डिपेंडेंस है. मोहब्बत तो मोहब्बत ही. लव is irrespective of rich, poor, gender, caste, creed, nationality. Okay. So the first line means that it's better that a poor person should not fall in love. मोहब्बत करना ये अमीरों की प्रिविलेजेस है, एडवांटेजेस है. गरीब को, अनएम्प्लॉयड को मोहब्बत नहीं आता. बट इन दिस स्टोरी द मेन कैरेक्टर यूजिन is unemployed, is poor, is charming, and has fallen in love. Poor should be practical and prosaic. Prosaic means opposite of poetry. मतलब एकदम कैलकुलेटिव. सो ये सेइंग गरीब को प्रैक्टिकली होना चाहिए. ओके, 2 रुपया चेंज अगर दे कोई तो उसको नहीं बोलना चाहिए कीप द चेंज, बिकॉज
You might need the change more than the driver. So they should be, गरीबों को प्रैक्टिकल होना, प्रोजाइक पोइट्री उनको नहीं भाता है. फॉर एग्जाम्पल, गरीब को अगर कोई गिफ्ट में पोइट मतलब पेंटिंग दे तो बेच देना ही बेहतर है, क्योंकि घर में खाना नहीं है तो पोइट्री को चाट के क्या फायदा. सो ही इज सेइंग आर्ट मतलब पोइट्री, रोमांस, लव, ये सब एरिस्टोक्रेसी तब भाता है जब पेट में दाना हो. तो मध्य प्रदेश खाली हो तो उत्तर प्रदेश में कुछ काम नहीं आता. सो जब खुद भी नहीं हो तो पेट में, तो दिमाग में बुद्धि कहाँ से आए. So poor people should not be impractical, they should be calculative, they should be opposite of poetry. Okay. But here again the sarcasm is, the character in this story is not practical and he is not at all prosaic, he is very poetic. It is better to have a permanent income than to be fascinating. He is saying कि एक practical structured job होना interesting होने से ज्यादा अच्छा है. Now author here, Oscar Wilde, is actually saying just the opposite, because what is the use of permanent income if you are not fascinating? And what is the use of life if there is no charm in it? And what is the use of life if there is no love in it? So author is actually mocking at those people who believe in permanent income, who believe that dana pani, roji roti, roti kapda makan. So author is mocking fun at them. And it's a very subtle satire. सो इज सेइंग कि एक परमानेंट इनकम होना, इंटरेस्टिंग होने, फैसिनेटिंग होने, फाट मारने, बड़ा बड़ा बाल रखने, ब्यूटीफुल होने से अच्छा है काम काज करो, घर रोजी रोटी चलाओ. These are the truths of modern life which Eugene Exin never realized. So the protagonist, main character, उसका नाम है Eugene. So Eugene Erikson does not realize this love के अमीरों को ही प्यार करना चाहिए. तो मिस्टर एरिक्सन डज नॉट रियलाइज दिस. और ह्यूगी इंटेलेक्चुअली मस्ट एडमिट ही वाज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस. मतलब इंटेलेक्चुअली भी वो कोई बहुत बड़ा मतलब साइंटिफिक जर्नल में लिखने वाला कोई पीएचडी होल्डर नहीं था. ही नेवर सेड अ ब्रिलियंट थिंग और इवन इनलेचर थिंग. मतलब ऑथर इज सेइंग कि ये आदमी, उसके कहानी का मेन कैरेक्टर ह्यूगी, ये ना कभी कोई महान बात बोला है, ना किसी का दिल दुखाया, एक सिंपल इंसान है. ही वाज वंडरफुली गुड लुकिंग. सो ऑथर इज सेइंग इसको ऐसा कोई नहीं बहुत बड़ा कोई डिग्री विग्री था, ना ही वो अमीर है. उसके पास है क्या भाई साहब? उसके पास खूबसूरती है. ही इज वेरी हैंडसम. ही हैज क्रिस्प ब्राउन हेयर. उसके पास खूबसूरत बाल है, अच्छा क्लियर कट प्रोफाइल है, दिखने में अच्छा. ही हैज ग्रे आईज. He was popular among men as well as women. इतना खूबसूरत था तो लड़कों में भी फेमस था, लड़कियों में भी फेमस था. He had never accomplished except that of making money. यानी वो सब चीज में अच्छा था सिवाय पैसे कमाने में. और ऑथर ने पहले लाइन में क्या कहा? पैसा कमाए बिना किसी को रोमांस करना नहीं चाहिए. बट ये महान हस्ती मिस्टर योगी, इन्होंने, उनके पास सब काबिलियत है सिवाय पैसा कमाने का. His father had bequeathed him a sword. इसके पापा ने उसे एक तलवार दिया. अब भाई साहब तलवार से रोटी रोटी आए को नहीं, तलवार से तो घर चलेगा ही नहीं. And a history of a book of in 15 volumes. 15 तो हिस्ट्री का किताब. हिस्ट्री का किताब से क्या ही होने वाला. बड़ा बाजार में दुकान होता तो कुछ अच्छा काम चल जाता, लेकिन पेनिनसुलर वॉर का हिस्ट्री इसके पापा ने तलवार में दिया. तलवार से ही कुछ हो सकता है, कुछ खास किताबों से क्या ही हो. यूजिन hung the first over his looking glass. यूजिन ने तलवार अपने लुकिंग ग्लास के पास रखा है और अपने सेल्फ में ये सब किताब रख दिया. And lived on 100 years that an old aunt allowed him. और एक आंटी उसको कुछ कुछ पैसा देती थी, उसी से वो जीता था. He had tried everything. ऐसा नहीं है कि आवारा है, इसने मेहनत किया है कम कमाने का. He had gone on stock exchange for 6 months. 6 महीना ये जाके स्टॉक एक्सचेंज में वो सब शेयर मार्केट का काम इसने किया है. बट व्हाट कैन अ बटरफ्लाई डू अमंग द बुल्स. मतलब ये एक बार सेंसिटिव रोमांटिक टाइप पोएटिक ख्यालों में खोने वाला, आज उनसे पहली मुलाकात होगी टाइप, मतलब आर्टिस्टिक दुनिया वाले के लोग है ये मिस्टर ही.
एरिक्सन, और कहाँ इनको ये स्टॉक एक्सचेंज क्रूएल, बहुत ही डाउन, बहुत ही प्रैक्टिकल, रूड, रफ, बड़ा बाजार, गणेश की माला पड़ा जैसा जगह में भेजा गया, और ये कहाँ ख्यालों में खोए गार्डन में रहने वाले लोग। सो ऑथर इज यूजिंग सच ए ब्यूटीफुल फ्रेज, इज सेइंग कि बुल और भैंस और गांव के बीच में बटरफ्लाई का क्या काम। सो ये बुल और बियर, he is mocking fun at all those people who are at stock exchange. You'll see, if you ever have seen stock exchange in TV, they have lots of phone and they keep on talking, shouting, because lots of people, money is involved. So it's very natural for them to get hyper. लेकिन this man could not stay there for long. He had, फिर वो जगह छोड़ दी उसने 6 महीने में. He had been to a tea merchant for little longer. कहीं चाय बेचने का, चाय दुकान में काम किया. But he was tired of that. ये चाय का ये नाम है, पीकॉन सुकॉन, इतना चाय, पोएटिक आदमी लोग चाय पीता है, चाय बेचने में क्या इंटरेस्ट है, पोएट. Then he had tried selling sherry, a kind of wine, but that went dry, वो भी चला नहीं. At last he became nothing. स्टॉक एक्सचेंज में काम हुआ नहीं. ओके, सब शेरी एक, मतलब ये तो इससे सब बनता है, वो चला नहीं, मतलब उसमें कोई काम हुआ नहीं, चाय बेचने में हुआ नहीं. सो ही बिकेम नथिंग, बट इज वेरी डिलाइटफुल. उससे बात करके आपको मजा आएगा. इनफेक्चुअल, मैंने कोई इफेक्टिव, मतलब कोई मतलब दौलत वौलत नहीं है. Perfect profile and no proficiency. The uses of word PPP. There's an alliteration in it, and there's a sarcasm in it. Profile perfect. Profile मतलब I'm talking about the looks. मतलब profile picture. आप लोग वो Instagram वाले profile picture. Profile perfect, काम को नहीं. और तो और, to make matter worse, he's in love. एक तो भाई साहब के पास खुद का रोटी जुटने का पैसा नहीं है, और इन्होंने कर लिया मोहब्बत. So the hero of this story, Mr. Yugi Erickson, he is very handsome, no employment, tried a lot of things, but failed in all of them. So at last he fell in love. The girl, और प्यार भी किया तो अपने औकात से करो, I mean अपने फाइनेंशियल स्टेटस से करो. इस बेचारे ने प्यार उनसे किया. अब प्यार भी क्या, औकात देख के होता है. Okay? He fell in love with Laura Martin, the daughter of the retired colonel who lost his temper and digestion in India. ये CO11 है, इसका कॉन्सेप्ट कर्नल, इट्स अ मिलिट्री पोस्ट, वेरी हाई पोस्ट. इनके पापा, मतलब लॉरा मार्टिन के पापा बहुत हाई पोस्ट में आर्मी में थे, और इंडिया आए थे. इंडिया आते उनका पेट खराब हुआ, तो अपना डाइजेशन भी खो दिए इंडिया में, और अपना टेम्पर भी. इंडिया में आने के बाद तो अक्सर व्हाइट मैन लोग टेम्पर खो जाते हैं. क्या, सो दिस व्हाइट मैन वाज पोस्टेड इन इंडिया. तब से इनका पेट खराब रहता है और दिमाग भी, और ये बहुत गुस्सा होते हैं, और उनका पेट हमेशा खराब रहता है. He had never found them. ना अब मैंने लंदन वापस आके ना इनको अपना काम ऑफ माइंड वापस आया है, ना पेट सही हुआ है. बट दिस गर्ल लॉरा मार्टिन adored the hero. He was ready to kiss even her shoestring. ये प्यार में इतना दीवाना था कि उसके जूते के स्ट्रिंग को भी किस कर सकता था. तो मतलब दीवानगी. They were the handsomest couple in London. और ये दोनों हैंडसम थे, दोनों क्यूट थे, यंग लोग में बहुत फेमस थे भाई साहब, पीसा नहीं था. सो दिस कपल were very famous in London because he was very good looking, he was very handsome, they were both lost in love, they used to show their affection in public, so they became very famous. Had not a penny between them. दोनों के पास पैसा नहीं, बाप इनको दे नहीं रहा, और ये तो कमा नहीं रहे. The colonel was very fond of, मतलब जो लॉरा मार्टिन के पापा थे उस लड़के को बहुत मानते थे, लेकिन मानते थे एज ए बॉय, नॉट एज ए घर जमाई, नॉट एज ए फ्यूचर सन इन लॉ. तो बोलते थे लड़का ठीक है, लेकिन शादी तो नहीं हो सकता क्योंकि कमाता नहीं है. सो एक दिन उन्होंने, मैंने होने वाले ससुर जी, आई मीन लॉरा मार्टिन के पापा, यूगी एरिक्सन को बोले कि देखो बेटा, मेरे पास आना बेटी से शादी करने जब तुम्हारे पास 10,000, उस जमाने में 10,000 पाउंड हो. ओके, एंड दिस हीरो बिकेम वेरी ग्लम ऑन दिस डेज एंड हैड टू, फिर वो बहुत दुखी हुआ, फिर गार्डन में मिला, फिर उसकी
वो गर्लफ्रेंड लॉरा मार्टिन उसको समझाए, कंसोल की, तो ठीक हो। सो ससुर जी ने कहा है, लाइक मोस्ट इंडियन फिल्म, कि अगर लड़की से शादी करना है तो 10,000 पाउंड के मालिक बनो, which is a huge amount in those days. It's a Victorian time, so it's a huge amount. One morning, as he was on his way to Holland Park, in England, London, where Martin's lived, he dropped in to see a friend. एक दिन वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, तो बीच में उसका एक फ्रेंड एलन ट्रेवर, he was a painter, वो उससे मिलने गया. So the main character in the story, he goes to meet his friend. Okay, but he was an artist are rather rare. So in a very practical time in London, there are very few artists. Okay, so बड़ा बाजार में कहाँ कोई रेयर पिकासो मिलेगा. खैर, now this man Hugo Erickson, he goes to meet his friend Trevor, Alan Trevor. वो एक बहुत बड़ा पेंटर है. Personally, he was a strange fellow. खुद वो आदमी, I mean Alan Trevor, वो भी एक अजीब गरीब आदमी था. Freckled face, लाल बियर्ड था, चेहरे में से दाग था. However, दिखने में अच्छा नहीं था. But when he took a brush, उसके ब्रश में भगवान अल्लाह ने ताकत दी थी. His pictures were sought for. मैं इतना अच्छा पेंटिंग करता था कि पेंटिंग करते ही लोग दीवाने हो जाते थे पेंटिंग का, और बिक जाता था. He had been very much attracted by Yugi. Yugi से इसका मतलब दोनों आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड के हैं, तो दोनों में दोस्ती हो गया. इट मस्ट बी ऑन द अकाउंट ऑफ पर्सनल चार्म. इसमें एक अजीब सा पोएटिक ब्यूटी है. हमारे कहानी के बटरफ्लाई, आई मीन हीरो द स्टोरी, लॉरा मार्टिन के वुड बी हस्बैंड, प्रेजेंट बॉयफ्रेंड. सो एलन ट्रेवर और यूगी इरेक्सन में दोस्ती हो गया बिकॉज ऑफ द पर्सनल artistic beauty. And that Alan Trevor used to say, the only people a painter should know are people who are beautiful, who are artistic to look at, and intellectual to talk to. तो इनका मानना था पेंटर साहब एलन ट्रेवर के, आर्टिस्ट लोग को मिलना चाहिए खूबसूरत लोगों से, आर्टिस्टिक लोगों से, और जिनसे बात करके इंटेलेक्चुअली इंसान को सेटिस्फेक्शन हो. Men who are dandies and women who are darling rule the world. Used to say कि जो लोग खूबसूरत होते हैं, जो लोग हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़कियां दुनिया पे रूल करती है, एटलीस्ट उनको करना चाहिए. Irony is, men who are dandy and women who are darling do not rule the world. People normally in the world are ruled by Hitler, Mussolini. So at least in those days. So this world is not ruled by artistic people. This world is ruled by hardcore, practical, rationalists, bureaucrats, IPS officers, lawmaker, politicians. So again, the author is mocking. He's saying, "Dunia chalta artistic dandy or डार्लिंग से." दुनिया डैंडी डार्लिंग से नहीं चलता, दुनिया पैसे और बैंक बैलेंस से चलता है. बट द ऑथर बिलीव्स इन दिस कांसेप्ट, सो इज मॉकिंग एट ऑल दोस पीपल जो पैसे के पीछे बावले हो जाते, देयर बाय लूज द चार्मिंग क्वालिटी इन देम. Men who are dandy and women who are darling rule the world. At least they should. However, after he got to know Yugi better, they became good friends. So Alan Trevor और Yugi में बहुत अच्छा दोस्ती हो गया. Okay. So Alan Trevor and he became very very good friend. He liked him much because of his buoyant spirit. मतलब उसके अंदर प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी के अंदर एक बहुत एक्साइटेड स्पिरिट था. मतलब उसके अंदर एक पैशन था, एक जील था, एक जज्बा था, एक मतलब एक मिठास था, एक चेहरे पे चमक था, एक आंखों में स्पार्कल था. His generous recklessness, बहुत काइंड था, एक reckless, uncontrolled, careless, बिंदास टाइप, carefully careless टाइप स्टाइल था. It had given him a permanent entrance into the studio. तो इसके लिए स्टूडियो में कोई आ नहीं सकता था. लेकिन just because Yugi Erickson was so charming, good to talk to, very artistic, he has got a permanent permission to enter Alan Trevor studio. So when Yugi came in to meet his friend, Trevor was, मैंने उसके friend Trevor was finishing touch to a life size, मतलब एक पूरा 6 फीट का 7 फीट का एक बेगर का, वो सामने बैठ के एक बेगर बैठा था, उसका स्केच कर रहा. द बेगर हिमसेल्फ वाज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन अ कॉर्नर. तो एक जगह था ऐसे रेस प्लेटफॉर्म, और बेगर खड़ा था, एंड दिस मैन ट्रेवर वाज ड्राइंग हिज स्केच. ही वाज अ वाइज एंड ओल्ड मैन. अजीब गरीब रिंकल फेस था,
उसको देख के दया आएगा। ओवर हिज शोल्डर वाज हंग, एक अजीब सा वो कोट जैसा पहना था, कपड़ा फटा हुआ था, बूट अजीब सा सिया हुआ था, और ओके एक हाथ में वो स्टिक लिया था, कपड़े फटे थे, और भीख मांग रहा था वो। आम मतलब अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे वाला कटोरा था। व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, whispered Yugi as he shook hand with his friend. So Trevor and Yugi, they came and met. So when Yugi Erickson looked at this man who had all this tattered फटा पुराना ड्रेस था, जूता सिया हुआ था, so he said to him कि कितना अजीबोगरीब मॉडल है। Amazing, shouted Trevor. I should think so. Such beggars are here not to be met with every day. तो इससे ऐसे बेगर बहुत कम ही होते हैं। A living, well, it's never painting. My stars, what an eating Rembrandt would have done. He's saying कि ऐसे ही देख के कोई मॉडल इतिहास में पेंटिंग किया था, रेम्ब्रेंट, ए वेरी ग्रेट पेंटर, उसको अगर ये मिला होता तो क्या होता। सो ही इज सेइंग दैट वेरी फ्यू पीपल get the opportunity to paint such painters, such life sketch of a real painter. Poor chap, said Eugen, how miserable he looks. So ये युगी को दया आ रहा है। एक्चुअली उसके पास तो कुछ खास दौलत नहीं है, लेकिन फिर भी दया तो किसी को भी किसी पे आ सकती। आई सपोज टू यू पेंटर इज फेस इज फॉर्चून। सो ही इज सेइंग टू द पेंटर कि इसकी गरीबी तुम्हारे लिए तो अमीरी है, ये गरीब का पेंटिंग बेच बेच के तुम लोग अमीर हो जाते हो। सर्टेनली वी डोंट वांट अ बेगर टू लुक ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। ही सेड बेगर तो बेगर जैसा लिखेगा तभी तो रियल और आर्टिस्टिक होगा। बेगर अगर अच्छा दिखने लगे तो उसके पेंटिंग को कह देगा कौन। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सेटिंग। बोल रहा है 1 घंटे बैठने को इस मॉडल को, जो फकीर का मॉडल है, किसको कितना मिलता है। 1 घंटा का एक्सेलिंग, इट्स अ काइंड ऑफ करेंसी, पाउंड। हाउ मच डू यू गेट फॉर अ पिक्चर। ही सेड आई गेट 1000 पाउंड। ही सेड नो नो नो, गिव मी। पेंटर, पोएट्स एंड फिजिशियन ऑलवेज गेट बिलीव। जैसे गरीब लोग, पेंटर, उस जमाने के डॉक्टर लोग को छोटा मोटा पैसा मिलता है। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज। क्योंकि सेइंग इनको भी ना परसेंटेज मिलना चाहिए। अगर तुमको 1 लाख मिले तो इनको भी उसका 30% मिलना चाहिए। अगर तुमको 10,000 मिले तो इनको भी 3,000 मिलना चाहिए। दे क्वाइट वर्क एज हार्ड एज यू। पेंटर तो बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, उसका मेहनत है, लेकिन जो लोग सामने बैठते हैं उनका भी बहुत मेहनत है। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, सेड यूगिन। नॉनसेंस नॉनसेंस, लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग द पेंट अलोन। इसे पेंट बनाना कितना मुश्किल है। इजल पे खड़ा रहो, फिर कलर मिक्स करो। Yugi, for you to talk, I assure you, there are moments when art almost attains to the dignity of manual labor. He says artistic, इतना मेहनत करने के बाद ये पैसा मिलता है। तो ये आर्टिस्टिक क्या है, ये तो एक मैनुअल लेबर जैसा, पूरा दिन खड़ा होकर पेंट करो। बट यू मस्ट नॉट चैटर, आई एम बिजी, स्मोक अ सिगरेट एंड कीप इट। इसे जाओ उधर साइड में, पेंटिंग करने तो बहुत काम है। आर्टिस्ट और मेहनत करने वाले लेबरर बराबर ही है। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन and told Trevor that the frame maker wants to talk to। इतने में एक सर्वेंट आया आके बोला, सर कोई बात, हमने आपसे बात करने वाला है। अरे है, तो फ्रेम मेकर कुछ बात करना है। सो द पेंटर एलन ट्रेवर वेंट आउटसाइड द स्टूडियो टू टॉक टू द फ्रेम मेकर। अब इस रूम में 2 आदमी है। एक वो जो बेगर है, आई मीन जो बेगर का मॉडल है, बेगर बैठा है, और हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, ह्यूगी रिक्सन, दे आर अलोन इन द रूम स्टूडियो। Don't run away, Yugi, he said. He said, तुम भागना मत, हम यही रहेंगे। So while Trevor, Alan Trevor was going out to talk to that frame maker, frame बनेगा ना पिक्चर का, so he said, तुम बैठना, I will come and talk to you. The old beggar man took advantage of Trevor absence. So जब पेंटर चला गया तो थोड़ा देर बेंच पे वो जो फकीर मॉडल था ऑफ ए बेगर, वो बैठ गया। He looked so lonely, forlorn and lonely and wretched, matlab unfortunate, that Yugi could not help but pitying him. And he took out from his pocket the money he had, जो भी उसके पास पैसा था पॉकेट से। एक तो खुद गरीब है, keep this in mind, himself is very very poor, लेकिन उसके पास पॉकेट में जो भी पैसा था उसने उस बेगर को दे दिया, मैंने बेगर के मॉडल को। All he could find was a sovereign and some copper, मैंने एक कॉइन था और कुछ छोटे छोटे पैसे दे दिए। Poor helpful, he thought to himself, he wants it more than I do। ये सोच रहा है तो हमसे भी गरीब है। यूगी एरिक्सन इज वेरी पुअर, बट ही थिंक्स कि ये तो हमसे भी गरीबी, इसको दे देते हैं।
and he walked across the studio and slipped the sovereign to beggar's hand. तो बेगर का बाउल था, तो इसने जाके बेगर के बाउल में पैसा दे दिया. The old man started an faint smile and said thank you. Old man ऐसे ऐसे smile ऐसे किए बोले thank you very much. Then Trevor arrived. इतने में painter Trevor arrived. Hughie took his leave and जाने लगा, blushing at what he had done. उसको हंसी आ रहा था कि इसने उसको पैसा दिया. He spent a day with Laura, got a charming scolding for extravaganza, and had to walk home. अब बस में जाने का पैसा नहीं, गाड़ी में जाने का पैसा नहीं है. गर्लफ्रेंड से मिला, गर्लफ्रेंड भी डांटी बिकॉज एक तो पैसा नहीं है और गरीब को देके चला है, तो इसमें एक्स्ट्रावेगेंजा, पैसा का बर्बादी है. That night he had to walk to the Palette Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself. तो क्लब में गया तो जाके देखा कि वहां उसका पेंटर भी है, तो साथ बैठ के मतलब ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है. Well, Alan, did you get the picture finished? So this Eugene is asking कि क्या पेंटिंग खत्म हो गया? He's saying yes, finished and framed, my boy. And by the way, you have made a conquest. बोला तुम तो बहुत बड़ा कामयाबी कर दिए. The old model you saw is devoted to you. Says जो पेंटर वो बेगर वहाँ था जिसका हम पेंटिंग कर रहे थे, वो तुमको बहुत खोज रहा है. मैंने he has developed a liking for you. I had to tell him all about you, where you live, what you do, what you don't do, what prospect you have, what is your goal. So Trevor और ह्यूजिन एक क्लब में मिलते हैं और इस क्लब में Trevor is saying to Hughie Erickson, the man, the model of a beggar was very interested in you, so I told him everything. So Hughie is saying, my dear Alan, I shall probably find him waiting for me when I go home. He says, शायद घर जाए तो मेरा इंतजार करता हो. But of course you're only joking. He says, Hughie को लग रहा है एलन मजाक कर रहा है. बोला हाँ तुम तो मजाक कर रहे हो. बोला बेचारा कितना गरीब था. I wish I could do something for him. This man, one of the poorest man, Hughie is saying कि काश मैं उस मॉडल के लिए कुछ कर पाता. I think it is dreadful that one has to be so miserable. पूरा दिन किसी को ऐसा बैठना पड़ता है, कितना पेनफुल होगा. I have got heaps of old clothes. Do you think I should give it to him? His rags were falling. मुझे उसका कपड़ा फट रहा था, मेरे पास कुछ पुराना कपड़ा है, हम भिजवा दे, तुम उसको दे दोगे. So this Mr. Hughie Erickson is willing to give his old clothes to the beggar. I mean to the model who was acting as a beggar. But he looks splendid in them. Trevor says, तुम नया कपड़ा दोगे क्या करोगे? बेगर का कपड़ा में तो बेगर का शूटिंग होगा, आई मीन पेंटिंग होगा, तो सही है. आई वुड नॉट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट. बोल रहा था अगर वो राजा का कपड़ा पहन के है तो कैसे ही बेगर का पेंटिंग होगा. When you call rags, I call them romance. जिसको तुम गरीबी बोल रहे हो ना, वो पोइट्री है, वो ब्यूटी है, वो आर्टिस्टिक है, वो रोमांस है. But since poetry to you is beauty to me, पिक्चर्स की मैंने खूबसूरती से तुमको, तुम लोग जिसको गरीबी बोल रहे हो ना, उसमें खूबसूरती है, उसमें पिक्चर है, उसमें ब्यूटी है, उसमें सेंसिटिविटी है. आई विल टेल यू. मतलब ठीक है, तुम कपड़ा देना चाहते हो तो हम उसको बता देंगे तुम्हारे को. Allen's, Yugi said seriously, you painters are heartless fellows. तुम पेंटर लोग भी क्या यहाँ इतना गरीब है, तुम लोग अपना पेंटिंग के बारे में पढ़े, तुम लोग, तुम्हारे अंदर दिल नहीं होता. And beside our business is to realize the world as it is to see. So Trevor is saying, सुनो, हम लोग का काम है दुनिया में जैसे दुनिया के लोग है दिखाना. गरीब है तो गरीब दिखाएंगे, अमीर है तो अमीर दिखाएंगे. So our duty is to show the world as it is, not to change it. We are not reformers. And now tell me about Laura. How is, तो ये बोल रहा है लॉरा के बारे में बताओ. लॉरा मार्टिन बोल रहा है वो बेगर, उसके में भी इंटरेस्ट है तुम्हारे गर्लफ्रेंड में. यू डिड नॉट मीन टू से यू टॉक टू हिम अबाउट हर. यूकी थोड़ा गुस्सा हो गया, बोला अरे तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी एक अनजान स्ट्रेंजर को ये सब बताने लगे. सर्टेनली आई डिड. ही नोज ऑल अबाउट द, तुम्हारे होने वाले ससुर, वो जो मान नहीं, रिलेंटलेस, जो मान नहीं रहे, कर्नल है जो, और 10,000 पाउंड का उन्होंने एग्रीमेंट रखा है कि इफ यू कैन ब्रिंग $10,000 माय डॉटर इज योर वाइफ. सो इसे सब मैंने उसको सब कुछ बता दिया. यू टोल्ड द बेगर अबाउट माय प्राइवेट अफेयर्स. यूगी सेइंग टू हिज फ्रेंड कि भाई तूने मेरी सब पर्सनल बात उस भिखारी को बता दिया. नाउ यूगी वाज वेरी एंग्री. माय डियर बॉय सेड ट्रेवर स्माइलिंग. अब ट्रेवर ने सच्चा बात बताना शुरू किया.
That old beggar you saw is one of the richest man in Europe. Now Alan Treva, the painter, has started explaining the background of this beggar-looking man. The beggar-looking man is not a beggar. He is one of the richest man in Europe. But he was getting himself painted as a beggar. वो बहुत करोड़पति इंसान है, लेकिन वो अपने आप को बेगर जैसा पेंट करा रहा. He is one of the richest men in Europe. He could buy tomorrow. He could buy London all tomorrow without even drawing his account. He says कल वो पूरा लंदन खरीद ले, even अपना अकाउंट से पैसा निकाले. He has a house in every capital, and he eats in gold plate, and he can prevent Russia from going to war. You can say, what do you mean on earth? What I say, the old man you saw today was Baron Husband, one of the richest man. He's a great friend of mine, buys all my pictures and all sorts of things, and gives me a commission a month ago to paint him as a beggar. So he says कि हमको कुछ दिन पहले वो अमीर आदमी ने पैसा दिया था कि मुझे एक बेगर जैसा पेंट करो. And I must say, he was looking very good in that rag. Or as I should say in my rags, बोला मेरा कपड़ा था. They are old suit I got in Spain. बोल रहा वो स्पेन का पुराना कपड़ा मैंने दिया, कितना अच्छा लग रहा था. Baron Hausberg, you can say, good heavens, I gave him a coin. बोल रहा है दुनिया का सबसे अमीर आदमी में से एक है और मैंने उन्हें भीख दे दिया. He sank into the armchair and became sad. He became very sad. एक करोड़पति इंसान को, शाहरुख खान जैसे इंसान को किसने भीख दे दिया. Gave him a sovereign. ट्रेवर हंसने लगा, बोले जा, तुमने करोड़पति इंसान को एक सोवरेन दे दिया, अब तो तुमको वापस कभी नहीं मिलेगा. आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड हिम. और यू की बोल रहे, तुम हमको पहले ही बता देते, तुम अपने आप को इतना मजाक नहीं बना पाते. तो ट्रेवर सिंह, हमको क्या पता, इट नेवर ऑकर्ड टू मी दैट यू विल गिव आर्म्स, ऐसे तुम भीख सबको देते रहोगे. आई अंडरस्टैंड यू किसिंग ए मॉडल. बोला ठीक है, तुम मॉडल को किस कर सकते हो, लेकिन ये सब तुम करोगे, बाय गॉड आई नेवर थॉट दिस. और दूसरा बात है कि दिस मैन, the rich man, he never wants his identity to be disclosed to everybody. When you came in, I did not know Ansbers would like his name to be mentioned. He says कि हमको सबके सामने उनका नाम बोलना उनको शायद पसंद नहीं आता. He was not wearing good dress. He was in beggar. He was, so उनको शायद खराब लगता. अब Eugene saying जा जा जा, what a duffer I made of myself. मैंने तो अपना पचका ही खुद करा दिया. एक करोड़पति इंसान को दे दिया मैंने ₹1. Not at all. He's saying, नहीं कोई पचका नहीं हो, not a duffer. He looks up to you, respects you. Not at all. He was in good spirit. He says, तुम्हारे पैसा मिलने के बाद वो बहुत excited था. He was smiling to himself, rubbing his old hand, and I could make out that he was very interested in you. He will invest your sovereign and give back your money. He says, तुम्हारे पैसे को स्टॉक में लगाएगा, ₹1 करके तुमको वापस देगा. Of course, Trevor is joking. But Yugi is now very sad. He's saying, I'm such an unlucky fellow. The best thing I can go is to go and sleep. My dear Alan, you must not tell anyone. मतलब किसी को बोलना मत कि मैंने इतना बड़ा गलती किया कि एक करोड़पति इंसान को मैंने एक सोवरेन, मैंने एक वहां का करेंसी इंग्लैंड का भीख में दे दिया. नॉनसेंस. इट बोल रहा कहीं बोलने का नहीं, क्या इट्स रिफ्लेक्स यू आर सो फिलैंथ्रोपिक. तुम इतना लोगों का भला चाहते हो. डोंट रन अवे. हैव अनदर सीक्रेट एंड टेल मी अबाउट लॉरा, अबाउट योर गर्लफ्रेंड लॉरा मार्टिन. However, you can not stop. उसको अच्छा नहीं लग रहा. He was feeling very unhappy, sad. और एलन उसका मजाक उड़ा रहा था, तो चला गया. Next morning, as he was at the breakfast, a servant came with this card. Monsieur Gustav Norden, on the behalf of Baron Husband. इतने में एक कार्ड आया और एक आदमी आया. ये कार्ड लेके सर्वेंट बोला कोई आया. I suppose he came for an apology. तो ये सोचा शायद कोई माफी मांगने का बात हो कि हम पैसा लेके चले गए. He told the servant to bring the visitor. An old gentleman with gold spectacles and grey hair came and said in a French accent, "Do I have the honor of talking to Mr. Monsieur Rickson?" Eugene बोलता है. वहाँ ऐसे बोलता है ना, इंडियन लोग ऐसे नहीं ऐसे. I have come from Baron Hansberg, he continued. I beg, sir, that you will offer him my sincere. So Eugene पहले ही हकलाते बोला, sorry sir, उनको जाके बोल दीजिएगा हमसे गलती हो गया कि हम करोड़पति इंसान को भीख दे दिया. The Baron said, the gentleman has commissioned me to bring you this letter. He said कि हमको
मेरे मालिक ने ये लेटर आपको देने के लिए कहा है, द सील्ड एनवेलप. ऑन द आउटसाइड वाज रिटन ए वेडिंग प्रेजेंट टू मिस्टर Hugh Rickson and Laura Martin from a beggar, and inside was a check of $10,000. I mean, sorry, pound. So पैसा मिल गया. तो ससुर जी रोक नहीं सकते. ससुर जी ने कहा था कि यू ब्रिंग 10,000 पाउंड, शादी होगा. सो ही वेंट टू हिज गर्लफ्रेंड्स फादर, मैंने लॉरा मार्टिन्स फादर, कर्नल के घर गया. कर्नल राजी हो गया, शादी हो गया. When they got married, Alan Trevor, मतलब उसका पेंटर, was the best man, and the Baron gave a speech. Millionaire models are rare. मतलब वो लोग जो मतलब जो मिलियनियर्स लोग मॉडल बने वो बहुत कम है. लेकिन बाय गॉड मॉडल मिलियनियर्स आर रेयर स्टिल. इस लास्ट लाइन का मतलब है कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे करोड़पति जो अपने आप को भिखारी सच के अपना पेंटिंग कराते होंगे. लेकिन उससे भी कम लोग हैं जिसपे हर मिलियनियर के लिए एक एग्जाम्पल है, मॉडल है, एक एपिटोम है, एक सैंपल है. सो देयर आर वेरी फ्यू more millionaires who want to be painted as a beggar. So ऐसे बहुत मिलियनियर कम होंगे जो मॉडल बन के अपने आप को पेंटिंग कराते होंगे. उससे भी कम है लोग इस पे सारे मिलियनियर लोग का नजर होता है उनसे कुछ सीखने का होगा. क्यों? बिकॉज अमीर आदमी बेगर बन के पिक्चर कराए एक कम बात है. लेकिन एक बहुत गरीब आदमी अपना सब कुछ निछावर करके किसी का हेल्प करे तो वो एक मॉडल है, वो एक एग्जाम्पल है, वो एक रोल मॉडल है. वो लोगों के लिए एक मिसाल है कि अगर कोई मिलियनियर हो तो ऐसा ही हो. सो ये आदमी ह्यूग इरेक्सन वो दिल से मिलियनियर था. और जो दिल से मिलियनियर लोग होते हैं ऐसे मॉडल कहाँ, ऐसे लोग कहाँ, ऐसे मिसाल कहाँ. लेकिन फॉर एग्जाम्पल कृष्णा एंड सुदामा. सुदामा bought some rice for Krishna. So and Krishna took it and ate it. So सुदामा के लिए वो सुदामा जो राइस दे रहे थे वो उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट था. बहुत मुश्किल से वो दे पा रहे थे. बट स्टिल यू कुड गिव. सो इन दैट सेंस Sudama's sacrifice is greater than Krishna what he gave to Sudama because Krishna was one of the richest person. सो मॉडल मिल मतलब वो लोग जो दिल से मिलियनियर हो, जैसे ह्यूग इरेक्सन गरीब होने के बाद भी एक ही सॉवरेन है वो भी दे देता. ऐसे लोग बहुत कम है. और जो मिलियनियर है वो कोई मॉडल बन रहा है ऐसे तो लोग कम होंगे. लेकिन उससे भी कम लोग वो हो जो दिल से मिलियनियर. सो हियर इज ऑस्कर वाइल्ड एट इज बेस्ट and the model millionaire. So if you have found this video of many meaning, any use, please do share it with your friends, comment, subscribe the channel and like the video. Thank you for watching the video.